Hello students, welcome to our channel AgriEdit. I am Alok and I am dealing with the subject agronomy. So welcome to our course ICAR JRF Agronomy 2024. Okay, so in this class we are going to discuss about IW by CP approach जो कि irrigation scheduling के अंडर आता है और आपको शायद पता नहीं इस पोर्शन से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. So you will get from this part 4 mark. And if you have not checked the paper of 2023, then please go through the paper and you will see one question came from this part. Also, I have discussed all the questions of irrigation in the previous classes. So if you have not seen that video, then please visit the video and see the analysis of the paper. Understood? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडल बाय सीपी अप्रोच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अगर जनरल एग्रीकल्चर में भी देखा जाए पोर्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है. अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. सो बिफोर गोइंग टू आइडल पे सीपी रेशियो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेड्यूलिंग इरिगेशन, क्योंकि थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं उसके बाद हम जाएंगे उसका जो अप्रोच है. तो शेड्यूलिंग इरिगेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिल इन द क्रॉप साइकिल, क्योंकि पौधा जो है सोइंग टू हार्वेस्ट तक पानी चाहिए टू ग्रो एंड टू गिव द वन ऑप्टिमम यील्ड. तो देखा जाए जैसे कि जैसे हमारा जो दिन का जो शुरुआत होता है और जो एंड होता है उसके बीच हमको 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर यूज वी हैव टू ड्रिंक. सो लाइक दैट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप it has to it needs some amount of water to complete its life cycle. So that is called as crop water requirement. That is called crop water requirement. Understood? So to complete its life cycle it's required some amount of water, and that amount of water we don't know. So when we should give water to the crop to fulfill that amount of water by the crop, so for that scheduling irrigation becomes the most important thing here to focus on, and also to give some more importance. So it indicates supplying the right quantity of water at the right time on an appropriate application method. तो आपको मतलब 3 चीज याद रखना है कि आपको सही क्वांटिटी ऑफ वाटर देना है, मतलब जितना पौधे को चाहिए, एंड एट द राइट टाइम. ऐसे नहीं कि आप मतलब कभी भी पानी दे दे पौधे को, ऐसे नहीं होता है. ओके, आपको सही समय में देना है एंड सही मेथड में देना है. मतलब आप ड्रिप देखिए, स्प्रिंकलर देखिए, या मतलब क्रॉप सुटेबल मेथड, आपको उस मेथड को फॉलो करके आपको इरिगेशन देना है. एंड आल्सो इट एनेबल्स द इरिगेटर to apply the exact amount of water to achieve the goal in terms of yield, क्योंकि फाइनली हमको yield ही चाहिए. yes or no? Finally we need yield, optimum yield, so that we will get or we will feed the upgrowing population. Understood? And also to get the hard income in our hand. So it will help the irrigator, means hum, to apply the exact amount of water to achieve the goal. So basically we can say that it is all about when to irrigate, how to irrigate, and how much to irrigate. कब देना है, कितना देना है, एंड कब देना है, मतलब और कैसे, किस तरह का और किस मेथड से हमको देना है. सो व्हेन टू इरिगेट, ये जो आता है, ये जो प्रश्न आता है, तो इसके अंडर हमारा डिफरेंट अप्रोचेस होता है. सो व्हेन टू इरिगेट, सो बेसिकली देखा जाए तो एक पौधे को मतलब बहुत ही अच्छी यील्ड देने के लिए फील्ड कैपेसिटी जो पॉइंट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है. सो मेंटेनेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर अराउंड फील्ड कैपेसिटी इज आइडियल फॉर मेनी क्रॉप्स. अगर आपका सॉइल कंटेंट जो है वो फील्ड कैपेसिटी के अंडर आता है, मतलब आपका 0.33 बार के रेंज में है, तो बहुत ही अच्छा है पौधे के लिए बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है. बट that is not constant. So when the plant will continuously take up the water, so gradually the field capacity level water will be gradually decrease and it will reach to the permanent wilting point. So due to the
process of evapotranspiration and other losses, the water level will be gradually drops. So what will happen when I have told before, when the water level of soil will be decreased, so soil moisture tension will be increased. So crops cannot extract needed moisture from soil for optimum growth. So ये सारा का सारा जो प्रोसेस है हमको मेजर करना है एंड वी हैव टू एनालाइज soil moisture measurement. So what will happen when the water level gradually decrease? The crops start wilting, leading to retarded growth and permanent wilting. So ये भी एक इंडिकेशन है कि अब मुझे पानी चाहिए. So this is one plant indicator approach. By seeing the plant, or it is a visible approach, by seeing the plant we can say that the plant requires water. But there are many reasons, due to some insect pest or any diseases, also there is wilting in the plant. So we have to analyze or we have to observe it. So crops should not experience moisture stress between two irrigation. आपने एक इरिगेशन दी और दूसरा इरिगेशन दी, इसके बीच आपका जो पौधा है वो मॉइस्चर स्ट्रेस फेस नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. सो अगर देखा जाए जो हमारा ड्राई स्पेल पीरियड होता है क्ले के लिए, क्ले सॉइल के लिए हमारा मैक्सिमम 15 डेज तक हम जा सकते हैं, एंड हमारा जो सैंडी सॉइल है हम 10 डेज तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो क्रॉप विल बी फेस द मॉइस्चर स्ट्रेस. अंडरस्टूड? सो by knowing the available soil moisture in the crop root zone and the ET demand of the crop and atmosphere, it is easy to determine when irrigation is needed. तो अगर हम क्या करेंगे, available soil moisture range जो है हमारे जो crop root zone में, देखिए ये रहा आपका पौधा, ये जो है जोन है, ये जो जोन है इसको बोला जाता है क्रॉप रूट जोन. 1 to 2 cm तक रेंज होता है. उसके बीच हमको क्या करना है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो मेजर करना है, एंड आल्सो वी हैव टू मेजर द ईटी डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड द एटमॉस्फेयर कंडीशन. अगर ये सारा को हम अगर मिला ले तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कब पानी देना है. उसके हिसाब से देयर आर मेनली 3 अप्रोचेस फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग. वन इज सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग. सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग इसके अंडर आता है हमारा एवरेज सॉइल मॉइस्चर एंड आल्सो डायरेक्ट मॉइस्चर मेजरमेंट. डायरेक्ट मॉइस्चर मेजरमेंट. अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर देखा जाए तो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन अप्रोच हम यूज करते हैं. देखा जाए तो एक शॉर्टकट है इसका, जो पौधा को ज्यादा पानी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल टोबैको ही देख लीजिए, टोबैको. ठीक है, टोबैको क्या है, मतलब इसका जो क्रॉप पीरियड है उसको पूरा का पूरा क्रॉप पीरियड में उसका पानी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं 25 अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन. और जो पौधा को पानी बहुत ही कम चाहिए, फॉर एग्जांपल फिंगर मिलेट की बात किया जाए तो इस यहाँ पे हम जा सकते हैं कि 75% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन तक हम जा सकते हैं, बहुत ही कम तक जा सकते हैं. ठीक है, सो दूसरा आता है कि एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट्स एंड वाटर बैलेंस टेक्निक. तो इसके अंडर हमारा आता है आइडलवाइज सीपी रेशियो एंड वाटर बैलेंस टेक्निक मेथड, फील्ड बैलेंस, आल्सो लाइसीमीटर मेथड आता है इसके अंदर. ठीक है, पर आज हम डिस्कस करने वाले ओनली आइडियल बाई सीपी रेशियो. और जो दूसरा मेथड से आप उसके लिए आपको कोर्स में रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर आप हमारा कोर्स में इंटरेस्टेड है देन यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर so that we will communicate and you will go for the registration. Also if you don't want to communicate then please visit the description box. वहाँ पे registration link है इस कोर्स का, you can register to the course and our course will start on from November. Understood? And also there are one more approach, that is plant based monitoring, that is contact and non-contact method. Okay, that is not important now, so we will focus on ideal CP ratio today. So let's go. So ideal CP ratio, it is the most simplest approach suggested by Prihar et al for scheduling irrigation. ये नाम भी याद रख लेना, किसने दिया था, Prihar et al 1974. आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं और ये पूछा जाता है क्वेश्चन आइडियल सीपी रेशियो अप्रोच किसने दिया था, Prihar et al 1974, ये आप बोल सकते हैं. ठीक है, it mainly depends on the climate. Obviously यहाँ पे दो प्रोसेस है, one is evaporation and one more is transpiration. ठीक है,
इवेपोरेशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द सरफेस, water surface as well as soil surface. Yes or no? Water surface as well as soil surface. So mainly यहाँ पे डाल्टन का जो रूल होता है, डाल्टन प्रिंसिपल इज यूज्ड एंड इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन अगर देखा जाए तो जो पौधे का जो एरियल पार्ट होता है वहां से अगर वाटर मतलब लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. सो बेसिकली the water loss from the aerial part of the plant is called as transpiration. ठीक है. और एक यहाँ पे आता है ट्रांसपिरेशन क्वोशिएंट, दैट इज द कितना पानी मतलब लॉस हुआ टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ड्राई मैटर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन क्वोशिएंट. तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये डिपेंड किस पे करता है? एटमॉस्फेयर कंडीशन पे. अगर एटमॉस्फेयर ड्राई है तो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. अगर ह्यूमिड कंडीशन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन विल बी लेस. अंडरस्टूड? सो व्हेन ET रीचेस ए पर्टिकुलर लेवल इरिगेशन शेड्यूल, सो हम क्या करेंगे? एक प्री डिटरमाइंड लेवल फिक्स कर देंगे कि ET जब इतना होगा हम पानी देंगे. ठीक है. The irrigation given is either equal to ET or fraction of ET. हम ET जितना है उतना ही पानी दे सकते हैं या उसका कुछ पोर्शन हम पानी दे सकते हैं. So in this approach, a known amount of irrigation water is applied when cumulative pan evaporation reaches a predetermined level. So cumulative pan evaporation कैसे मेजर करते हैं? By the help of instrument USWP pan evaporation, and also you can use sunken screen evaporimeter. So जो sunken screen evaporimeter है वो हमारा IRI में डेवलप हुआ था, शर्मा एंड दास्ताना ने डेवलप किया था. ठीक है. तो USW का ये कॉपी है पर ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? मेन टू टर्मिनोलॉजी, वन इज इरिगेशन वाटर एंड क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन. जब क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन में एक लेवल रीच होगा, जब इवेपोरेशन होगा और वो एक लेवल को आके पहुंचेगा, तब हम एक नॉन अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर विल बी गिवन. सो व्हाट इज दैट नॉन अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर? दैट इज 4 to 6 cm. दैट इज 4 to 6 cm. बेसिकली कॉमन देखा जाए 5 cm ऑफ इरिगेशन इज गिवन. एंड at what ratio or at what CP we are giving at ratio 0.75 to 0.8. ये वाला क्वेश्चन आता है. So basically the question come like, at what ratio the irrigation is scheduled by the help of IWCP ratio, at what ratio we are giving. So 0.75 to 0.8. So ये वीट का रेंज होता है और वीट का रेंज अगर देखा जाए IRI जो संकेत के वन का आता है 0.9 to 1.2 का अंदर उनका आता है. तो USWP से 0.75 0.8 ऐसे आता है. ठीक है. तो आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इरिगेशन इज गिवन एट 0.75 to 0.8 विथ 5 cm इरिगेशन. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और वो चेंज भी कर सकते हैं विथ लाइक 6 cm 8 cm ऐसे वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 0.75 to 0.8 विथ 5 cm ऑफ इरिगेशन वाटर. एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन आता है. सो क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन एट 0.5 0.6 0.75 0.8 5 cm ऑफ इरिगेशन वाटर. यहाँ पे गिवन क्या है? इरिगेशन वाटर इरिगेशन वाटर 5 cm है यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारा रेशियो है 0.5 दिया है, 0.6 दिया है, 0.75 दिया है, 0.8 दिया है. ठीक है. तो सॉल्यूशन देखा जाए तो क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन एट IWCP रेशियो ऑफ 0.5. सो यू कैन कैलकुलेट. सो बेसिकली विल गेट द आंसर इज 10 cm. इरिगेशन वाटर आपको मिल जाएगी यहाँ पे 10 cm. ठीक है. सिमिलरली देखा जाए तो CP एट 0.6 रेशियो 8.33 and CP at 0.75 6.66 and 0.8 is 6.25. ठीक है. तो आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया? ओके. सो वेयर वी आर. सो हाँ, तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ये CP है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि
जो रेशियो है जो अगर बढ़ता है तो क्या होता है, जो इरिगेशन वाटर लेवल का वो घटता है, ठीक है। तो व्हेन रेशियो विल बी मोर, remember when ratio will be more and it will reach to the 1, the irrigation water level will be gradually decrease, ठीक है, irrigation level water will be decrease। तो जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसका रेशियो कम है, जिसका ज्यादा पानी चाहिए उसका रेशियो कम है, जिसको पानी कम चाहिए उसका रेशियो ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल राइस में पूछा जा सकता है कि what will be the I double pi CP ratio or what is the ratio CP ratio of राइस, ठीक है। तो उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि सॉरी उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, और इरिगेशन वाटर लेवल उसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये इनवर्सली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो NTICR JERF 2023 में एक क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन 0.5 आइडल बाय CP रेशियो विद 5 cm ऑफ इरिगेशन वाटर। तो ये वाला हमने अभी डिस्कस किया, ओके, सेम क्वेश्चन आया था, और इरिगेशन एग्रोनॉमी बुक से ये वाला क्वेश्चन लिया गया था। और इरिगेशन एग्रोनॉमी बुक आपको क्या क्यों पढ़ना है ये वाला भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा देन प्लीज विजिट द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये वाला क्वेश्चन आया था और इसका आंसर है 10 cm, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर for each irrigation for scheduling irrigation at 0.5 0.8 IWCP ratio with 10 cm of CP, ठीक है। तो यहाँ पे CP जो है वो फिक्स है 10 cm, ठीक है, यहाँ पे 10 cm फिक्स है, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कैलकुलेट करके क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना, उसका आंसर वो रिप्लाई देना, हम चेक करेंगे कि आप देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। So that's all for today's class guys, thank you for watching। and अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है देन यू कैन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल and press the bell icon for notification and also for amazing videos just like that, okay। So meet in the next class, we will see in the next class, thank you guys।